some sustainable efforts to sustain this FPO movement. Without credit, grant cannot be given in eternity. So उसका एक सीमित टाइम है. उसके बाद क्रेडिट के रूप में ही ये मूवमेंट को आगे लेके जा सकता है करके नाबार्ड मैनेजमेंट डिसाइड किया था. जैसा SHG मूवमेंट था वैसे ही इट शुड लीड टू द पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट डिलीवरी सो दैट दिस विल बी अ सस्टेनेबल मूवमेंट. सो इसीलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फिनेंस तमिलनाडु करके हमारा नाम था एर्लियर नेम, उसको NAB किसान करके 2014 में we have changed it and we have been given a mandate to fund farmer producer organization in the year 2014. So from there our FPO journey started. So हम लोग simple terms at a competitive interest rate अभी भी मार्केट में इवन कमर्शियल बैंक्स के तुलना में हमारा इंटरेस्ट रेट कम है. So we are lending at a sub-commercial rate so that the farmer producer organizations will benefit out of it. Collateral free loans देते हैं because हमको मालूम है farmer producer organization at this stage even 15 साल 14 साल के बाद भी collateral देने का क्षमता नहीं है उनका. So collateral free loan दे सकते हैं हम लोग because we are taking the help of other partners for giving credit guarantees. And we collaborate with various stakeholders in the ecosystem because एक ही संस्था पूरा नीड को satisfy नहीं कर सकता है. So we know that very well. So we collaborate with as many institutions as possible so that we'll be in a position to offer a bouquet of services right from credit enhancement and everything. So we collaborate with other institutions also and other governments also, government of Tamil Nadu, government of Odisha. We are having a proper deep collaboration with them. We are administering some of their schemes related to farmer producer organization also, so that we are giving a holistic bouquet of services to the FPOs. And we have our presence. We have lent to almost 21 states across the country and 3 union territories, including Jammu and Kashmir and the Northeast. We have lent to farmer producer organizations. So as I mentioned, हम लोग का इधर कन्वर्जेंस चाहिए. एक ही संस्था उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकता कर सकते हैं. सो इसीलिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू स्टार्ट विद बिफोर द SFAC क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टार्टेड वी थॉट टू हैव अ collateral to do a collateral free lending we need some credit guarantee support. So our parent organization extended us a credit guarantee support of with a corpus of 10 crore. So वहाँ से we have started lending to FPOs. Now also for agriculture and allied activities we are taking the support of NABARD credit guarantee scheme क्योंकि अभी NAB संरक्षण का स्कीम पे agri and allied activities का एलिजिबल नहीं है इसलिए. एंड NAB संरक्षण गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को हम लोग 3 स्कीम चला रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन शेयर होल्डर्स इन NAB किसान. And then government of Odisha has given an exclusive credit guarantee scheme. NAB Kisan is administering for the FPOs in government of Odisha, in the state of Odisha. And then SFAC scheme आपको मालूम होगा credit guarantee scheme now it is not in existence. NAB संरक्षण का scheme आने के बाद वो बंद हो गया. And then earlier to that, before even tapping NABARD, we had a collaboration with the Tata Trust for guaranteeing to FPOs. We have done some 25-30 FPOs we have covered with the guarantee coverage from Tata Trust and also with Rabo Foundation. Rabo Bank आपको मालूम होगा Netherlands का बैंक है. We had a tie-up and then Rabo Bank was supporting us for giving guarantee cover to bigger ticket loans for FPOs. जो FPO जो outgrow हो गया SFAC का पहले 1 crore तक guarantee cover था. More than 1 crore जिस FPO का हम फंड करते थे we used to take the guarantee cover under Rabo Foundation. अभी फिलहाल नहीं है. अगेन सेकेंड राउंड ऑफ गारंटी कवर का अभी डिस्कशन चल रहा है रेबो फाउंडेशन के साथ. बेसिकली विल टेक फॉर FPOs मोर देन 2 crore. अभी NAB संरक्षण में जो कवर नहीं होगा उनका प्लस अग्री कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स के लिए वी आर हैविंग अ डिस्कशन विद रेबो फाउंडेशन. विल बी क्लोजिंग इट आल्सो. सो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. वी हैव केप्ट अ वेरी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. जो FPO ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फुलफिल हो गया तो दे आर रेडी फॉर आवर फंडिंग. फर्स्ट वन इज 6 months. एलियर हम लोग का 1 साल का एग्जिस्टेंस होना चाहिए. 1 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट वी आर इंसिस्टिंग. बट अभी गवर्नमेंट का 10,000 FPO स्कीम आने के बाद वी हैव रिलैक्स्ड इट
एंड 6 महीने 6 मंथ्स ओल्ड एफपीओ है तो भी हम लोग फंड कर सकते हैं। 6 महीने का लिमिटेड सीबीपीओ द 10,000 एफपीओ स्कीम के अंतर्गत है तो 6 महीने का एफपीओ वी कैन गिव अप टू 5 lakhs विद 6 मंथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस। मिनिमम शेयर कैपिटल 2 लाख होना ही चाहिए एंड पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। नेगेटिव नेटवर्थ का हम लोग अभी फंड नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव नेटवर्थ का मतलब है आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स मिला के वो पॉजिटिव में होना चाहिए। एंड दूसरा, किसी संस्था को वो डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। डिफॉल्टेड एंटिटीज वी डोंट सपोर्ट। एंड रेगुलर सीईओ होना चाहिए। पार्ट टाइम सीईओ से तो हम लोग का एलिजिबल नहीं है, रेगुलर सीईओ होना चाहिए। एंड बिजनेस प्लान, कल तो आपने डिस्कशन किया होगा, बिजनेस प्लान का सेशन भी था। वी नीड बिजनेस प्लान फॉर एटलीस्ट मिनिमम 1 year एंड वी डोंट लुक फॉर अ वेरी एलाबरेट बिजनेस प्लान। जो बेसिक चीज़ उसमें होना चाहिए, बेसिक एसेंस, सीजन वाइज क्या क्या प्लान कर रहे हैं, मंथ वाइज, सीजन वाइज, क्वांटिटी एंड देन फिजिकल एंड फिनेंशियल पैरामीटर्स। उतना है तो भी हम लोग हमारा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स उसको मॉडरेट करके उनसे मदद से वो फाइनलाइज कर देते हैं। सो वो बिजनेस प्लान है तो भी काफ़ी है। एंड देन इंटरनल क्लासिफिकेशन है हमारा, उसके हिसाब से ABC करके उसका क्लासिफिकेशन के अंदर होना चाहिए। एंड देन ऑल KYC ALM नॉर्म्स फॉलो करना है। एंड बिजनेस किसी संस्था का और गवर्नमेंट एंटिटी से बाहर नहीं करना चाहिए। मेनी एंटिटीज वी आर सीइंग दे आर बार्ड फ्रॉम डूइंग बिजनेस फॉर वेरियस रीजंस। ऐसा एंटिटीज़ को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। एक और चीज़ आप लोग का ज्ञान में कहना चाहता हूँ, वी आर RBI रेगुलेटेड एंटिटी। सो हम लोग का जो भी लेंडिंग नॉर्म्स है उसको पालन करना पड़ेगी। whatever documents we are collecting, because some of the FPOs, fortunately today Pradhan's representative was happy about Napkison services. In many of the forums we are facing criticism also. I am very open about it that बहुत सारे documents मांग रहा है, डिले हो रहा है करके, because documents तो आप लोग का सबमिट करना ही पड़ेगा FPOs को, जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है। बिकॉज बीइंग ए रेगुलेटेड एंटिटी हम लोग का मिनिमम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना ही पड़ेगा। अभी तो आपका रिसेंट न्यूज़ वगैरह देखा होगा, RBI हाउ स्ट्रिक्ट दे आर ऑन KYC नॉर्म्स। बहुत सारे एंटिटीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रहे हैं। सो एज अ रेगुलेटेड एंटिटी हम लोग का जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है फॉर लेंडिंग वी हैव टू कलेक्ट। सो दिस आर द एलिजिबल एक्टिविटीज़। वर्किंग कैपिटल लोन है हमारा 12 मंथ्स से 18 मंथ्स तक दे सकते हैं। 8 मंथ्स 10 मंथ्स को भी दे सकते हैं। अप टू 18 मंथ्स हम लोग वर्किंग कैपिटल लोन दे सकते हैं। टर्म लोन अप टू 7 years, मैक्सिमम अप टू 10 years तक भी हम लोग दिया है। अप टू 7 years टर्म लोन है। एंड प्लेज लोन हम लोग पहले प्लेन वेयरहाउस में दे रहा था। अभी वी आर डूइंग ओनली अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस बेस्ड रिसीट्स। सो इट विल बी एन ऑनलाइन प्लेजिंग विल हैपन। The same time, once the pledge is done, the same time, same day, you will be getting the disbursal. And similarly, आप जब जिस दिन रीपेमेंट करेगा सेम डे प्लेज रिलीज हो जाएगा, आपका प्रोड्यूस वेयरहाउस से आप निकाल सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट बेस्ड लेंडिंग। सो हम FPOs का 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो स्टार्टअप FPOs है, अप टू 2 साल तक जो FPOs है उसका हम लोग अप टू 5 times द नेटवर्थ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है, अप टू 5 times लोन दे सकते हैं। मेच्योर्ड FPOs, नेक्स्ट लेवल में जो FPO पहुंच गया 2 साल के ऊपर है प्लस टर्नओवर अच्छा है तो अप टू 10 times। जिस FPO का हाई पोटेंशियल FPOs ऐसा है तो 2 साल के ऊपर है तो अप टू 20 times भी हम लोग लोन दे सकते हैं आपका शेयर कैपिटल में। 85% ऑफ द टोटल वैल्यू लोन है, 15% खुद का मार्जिन होगा। और ये हमारा बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस प्रोसेस पूरा ऑटोमेट कर दिया। अभी एंटायर थिंग इज ऑनलाइन, राइट फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन। वेबसाइट में आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी पूरा ऑनलाइन हो रहा है। वी हैव गॉट API इंटीग्रेशन विद ऑल द एंटिटीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पैन चेकिंग, एवरीथिंग, KYC चेकिंग, एवरीथिंग अभी ऑनलाइन कर दिया। सो इट इज़ अ सीमलेस प्रोसेस। जब ऑनलाइन अप्लाई करेगा टिल यू डिस्बर्स, अभी डॉक्यूमेंटेशन, लोन डॉक्यूमेंट, सैंक्शन लेटर, एवरीथिंग एट वन स्ट्रोक। सैंक्शन होने के बाद इफ आई सैंक्शन नाउ द सेम सेकेंड यू विल गेट द मेल फॉर पेइंग द प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी पे किया तो नेक्स्ट सेकेंड सीमलेसली इट इज इंटीग्रेटेड, यू विल गेट अ सैंक्शन लेटर विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स को आपको डाउनलोड करके साइन करना है। एंड दैट ऑल्सो वी आर गोइंग फॉर e-signing. So maybe in another 3-4 months we'll be going for a e-signing of all the documents.
So everything will be a seamless electronic process. So हमारा प्रोसेसिंग फी भी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम करके डिफरेंशिएट किया है. जैसा हम लोग के साथ इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग आवर रिलेशनशिप, आवर प्रोसेसिंग फी ऑल्सो वी आर reducing the processing fee also. So मेन थिंग रेटिंग टूल है, FPO का रेटिंग टूल है. हाउ वी रेट द FPOs वो आप लोग को भी जानना जरूरी है. दिस ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स है. ये जो गवर्नेंस, मैनेजमेंट, शेयर कैपिटल कितना है, बुक कीपिंग, अकाउंट्स कैसा मेंटेन कर रहे हैं, फिनेंशियल एस्पेक्ट है, क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, ये चीज़ ब्रॉड क्राइटेरिया है. उसके ऊपर हम लोग रेटिंग करके आपका एलिजिबिलिटी है, कितना लोन देना है, वो सब डिसाइड होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर, MIS, कन्वर्जन, सस्टेनेबिलिटी. अभी हाल ही में लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर से हम लोग रेटिंग स्केल को 2 भाग में बांटा है बिकॉज ऑफ आवर ऑटोमेशन. सिंस ऑनलाइन ऑटोमेशन में टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी, फर्स्ट 1 रेटिंग जब FPO अप्लाई करेगा ऑनलाइन, बैक एंड में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रेटिंग हो जाएगा. इट विल थ्रो दैट वेदर इट FPO इज एलिजिबल और नॉट. सो द सिस्टम ड्रिवन रेटिंग विल बी डन. द सेकेंड रेटिंग टूल जब हमारा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर FPO का अप्रेजल के जाएगा, ओनली 4-5 पैरामीटर्स बिकॉज फील्ड लेवल ऑब्जर्वेशन उसमें फैक्टर करना है. वंस 4-5 पैरामीटर्स फील्ड लेवल ऑब्जर्वेशन फैक्टर करने के बाद ऑटोमेटिकली द सेकेंड रेटिंग टूल जनरेट होके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा. सेम थिंग, बेसिक क्राइटेरिया फॉर रेटिंग रिमेन्स द सेम, बट फॉर ऑपरेशनल ईज वी हैव स्प्लिट इनटू 2 रेटिंग स्कूल. Okay, coming to the main part which I want to discuss, because as I mentioned earlier, हमारा मकसद है, we are only temporarily fitting the gap as an NBFC. So even NABARD's requirement, even the entire ecosystem's requirement is mainstream banks should fund FPOs like SHGs. SHGs of today, mainstream banks should come and fit the bill. So whatever I am going to talk now, it is not for NAPKISAN, but for all the banks. If FPO wants to take credit facility from a bank, this is how they should operate. I think those of you who have heard me in different forums, it will be a repetition for them, at the cost of repetition, because Asutosh and all, many forums we speak. So at the cost of repetition, again I am telling, there are 2 things. One is credit worthiness and another one is credit readiness. Credit worthiness क्या है? जो एलिजिबल क्राइटेरिया जब हम लोग बताया था, 2 लाख शेयर कैपिटल होना चाहिए, नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए, फुल टाइम CEO, वो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. वो सब बॉक्सेस टिक हो गया तो दैट FPO इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट. ओके, सो दे आर वर्थीनेस, दे आर वर्थ फॉर क्रेडिट, इक्विटी बेस है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, रीजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब है तो किसी भी बैंक उसको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा. इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. द नेक्स्ट इज क्रेडिट रेडीनेस. इसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हमको. इवन आफ्टर वी आर एट ऑलमोस्ट 10 years ऑफ लेंडिंग टू FPOs, more than 2,500 FPOs को हम लोग लोन दे चुका है. एवरी डे एवरी लोन इज अ चैलेंज फॉर अस. प्रोसेस करने के समय विभिन्न तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है. ये पूरा प्रॉब्लम इसके वजह से, क्रेडिट रेडीनेस के वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है. मतलब कंप्लायंसेस, जो भी बेसिक कंप्लायंसेस नॉर्म्स है, दे आर नॉट अडेयरिंग टू इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द FPCs now all are FPCs only. Very few FPOs are registered under other acts, Societies Act. So basically FPCs for Companies Act, FPC registered under FPC, there are compliance heavy है, but still that has to be fulfilled because main reason even for SFAC also, they are for all their assistance, they are insisting on farmer producer companies only, because all the even the lenders, mainstream banks, they will be comfortable only if you are a farmer producer company, because they have access to public data, MCA डेटा, पब्लिक डेटा इजीली एक्सेस करके आपका कंपनी के बारे में ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं. सो द कंप्लायंसेस, दे शुड टेक केयर ऑफ द कंप्लायंसेस. नाम बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करना है तो 30th सितंबर के अंदर करके फाइल करना, रिटर्न फाइल करना है. क्वार्टरली रिटर्न्स जो भी है MCA में फाइल करना है. शेयर होल्डर्स, जब न्यू शेयर होल्डर्स एनरोल कर रहे हैं, शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इफ यू आर कलेक्टिंग within the time limit, you have to issue the SAT certificate and has to be registered in the MCA. जब लोन ले रहे हैं चार्ज क्रिएशन करना है, एग्जिस्टिंग लोन है तो चार्ज को वेकेट करना है. जो भी है, जो कंप्लायंस रिलेटेड पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड बुक कीपिंग, बिकॉज एनी बैंकर when they go for appraisal, they have to have a visibility of the cash flow or the visibility of the revenue. आप जो भी क्लेम कर सकते हैं, हमारा टर्नओवर 2 करोड़ है, 3 करोड़ है,
बट आपका बुक्स में, आपका बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं दिख रहा है तो लेंडर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो लोग तो उसको ही देखता है ना, बैंक स्टेटमेंट को ही देखता है। अभी तो बैंक स्टेटमेंट में वी आर ऑल्सो यूजिंग वेरी एडवांस्ड टूल्स आ गया, बैंक स्टेटमेंट एनालाइजर। सो वंस यू रन द एनालाइजर, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इट विल थ्रो। आप किसको कितना पैसा दिया है, कहाँ से आया है मनी, वेदर एनी आउटसाइड पार्टीज आर इन्वॉल्व, एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, किसी डायरेक्टर को पैसा दिया है क्या, एवरीथिंग वी कैन एक्सट्रैक्ट बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस से। सो आपका ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मैक्सिमम बैंक अकाउंट के थ्रू रूट होना चाहिए। बिकॉज वी आल्सो नो डीप रूरल में 100% बैंकिंग ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो एक ऑप्शन है, आप कैश में डील किया तो कैश बुक मेंटेन करना है, वाउचर्स वगैरह ठीक ठाक होना चाहिए, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश बुक में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो होगा। एंड देन ऑडिट, एज आई मेंशन, टाइमली ऑडिट, वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी सभी जगह, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द एंटिटी। ऑडिटर्स जब ईयर एंड होगा, दे विल कैटर टू बिगर एंटिटीज, एफपीओस को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। बट आपका सितंबर 30 तक टाइम है, एटलीस्ट उस टाइम तक ऑडिट होना चाहिए बुक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गवर्नेंस। हम लोग का वही प्रॉब्लम हो रहा है, इवन 4 साल 6 साल के बाद भी 6 बार 7 बार क्रेडिट दे चुका है हम लोग। क्रेडिट 6th साइकिल ऑफ क्रेडिट में एफपीओस डिफॉल्ट हो रहा है। 6th साइकिल ऑफ क्रेडिट मीन्स आप इमेजिन कर दीजिए, हम लोग 2 करोड़ 3 करोड़ तक उसका हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम 10 लाख 15 लाख से ओके 6 करोड़ 7 करोड़ से हम लोग व्हेन वी लेंड, दैट टाइम एफपीओस आर डिफॉल्टिंग। वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऐसा डिफॉल्ट होने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। बिकॉज एवरीबडी इन दिस इकोसिस्टम शुड बिहेव रेस्पॉन्सिबली। एज अ लेंडर वी हैव टू बिहेव रेस्पॉन्सिबली, एज अ सीबीबीओ, एज अ एफपीओ, ऑल शुड बिहेव रेस्पॉन्सिबली सो दैट द एफपीओ मूवमेंट विल सस्टेन। सो इसमें ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, व्हेन वी एनालाइज नो, द प्रॉब्लम लाइज इन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पूरा रिलेटिव्स है उसमें, ऐसा है तो उसका अगेन ट्रांसपेरेंसी विल बी एन इशू। So my request to all the CBBOs who are present here, at the beginning itself, जब FPO आप लोग फॉर्म करते हैं उसी समय आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है रूरल सिस्टम में, सपोज दैट इफ यू हैव मेड सम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेकेंड ईयर 3rd ईयर में उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। देयर विल बी लॉट ऑफ इंटरनल पावर पॉलिटिक्स and then it reshapes the entire atmosphere, the FPO will fail because उनका प्रेस्टीज इश्यू हो जाएगा, मैं बाहर निकला तो लोग क्या सोचेगा करके डिफरेंट डायमेंशन में प्रॉब्लम आ रहा है। सो स्टार्टिंग में जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ऐसे CBBO कोऑर्डिनेट करते हैं, उसी समय यू हैव टू सी टू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एटलीस्ट ब्लड रिलेटिव्स तो नहीं होना चाहिए। एंड देन देयर क्रेडिट हिस्ट्री शुड बी क्लीन, बिकॉज बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिफॉल्ट वेरी हाई डिफॉल्ट्स हैं। सो बैंक्स अभी NBFC है, वी हैव ब्रॉट इन सम मॉडरेशन वी आर डूइंग। सपोज दैट क्रॉप लोन में उनका डिफॉल्ट है, वी हैव पुट अ लिमिट, इतना तक है तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। बट मेन स्ट्रीम बैंक्स, इफ यू वांट फंडिंग फ्रॉम मेन स्ट्रीम बैंक्स, एक भी डायरेक्टर को डिफॉल्ट है तो बैंक फंड नहीं करेगा FPOs को। सो व्हेन यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉन्स्टिट्यूशन करने के समय आपको ये ध्यान देना है, वो डिफॉल्टर नहीं है क्या देखना है, रिलेटिव्स नहीं होना चाहिए। You have to take care of this so that it will be a seamless exercise when they get the credit. So and the governance aspect, board meeting properly हो रहा है क्या, सभी board of directors participate हो रहा है क्या board meeting में, and they should participate in all affairs. Supposing that lending के लिए कोई भी संस्था अप्रेजल के लिए आ रहा है तो board of directors सभी लोग उधर वो meeting में भाग लेना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, worst case scenario में बोल रहा हूँ, because I have seen the entire gamut of FPO operations, because as a NABARD DDM जब मूवमेंट शुरू हुआ था, आई वॉज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ FPOs डिस्ट्रिक्ट लेवल में। जब फॉर्मेशन होगा उस समय से अभी आई एम इनटू लेंडिंग, आई एम इनटू द एक्सट्रीम एंड, जब डिफॉल्ट होता है, लीगल एक्शन, रिकवरी, उस हद तक देख लिया। सो एंटायर चेन का देख के वो एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। जब जितना तक अच्छा चल रहा है, नोबडी इज वरीड, बट वंस देयर इज अ डिफॉल्ट, हम लोग जब लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलता है मेरे को मालूम ही नहीं है, ऐसा लोन लिया है करके मालूम ही नहीं है, बट ही हैज साइंड इट, वो अंडरटेकिंग में साइन करता है, फिर भी बोलता है मेरे को मालूम नहीं है। CEO अपने आप कर दिया ट्रांजैक्शन, हमको मालूम नहीं है। समटाइम्स CEOs बोलता है हमको बोला ही नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये ट्रांजैक्शन किया है, हमको मालूम नहीं है। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वेरी क्लियर होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल क्या है, CEO का रोल क्या है,
वो सब CBPOs ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम द 3 years 4 years 5 years हैंड होल्डिंग पीरियड में ये सब उनको करेक्टली यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, अदरवाइज आगे जाके लोन लेने में भी प्रॉब्लम होता है, एंड देन वंस डिफॉल्ट हो गया तो दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मैनेज द लीगल केसेस आल्सो. So these are the broad things I have summarized. Worthiness and readiness, these things both FPOs and the CBPOs kindly take care. If you take care of these things, credit flow won't be an issue for FPOs. Even mainstream banks also definitely they will come forward and lend to FPOs, because FPO now it is one of the priority sector lending also tag hai, and so many banks are asking us day in and day out, आपका पोर्टफोलियो बाई आउट कर सकते हैं क्या. इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दे आर आस्किंग अस फॉर अ बाई आउट ऑफ आवर पोर्टफोलियो, एंड देन वी आर अ regular faculty support we give for all the training colleges of banks, CAB Pune, NIBM, BIRD, NBSC, different this one. So there are a lot of interest from bankers also to extend credit. So आप लोग का ये चीज़ आप if you can take care, definitely the credit will flow to the FPO ecosystem. So this is a way forward. जब CBPOs फॉर्मेशन के समय कमर्शियल ओरिएंटेशन लेके आना है, इसलिए वी हैव ब्रॉट इन द CBPO कॉन्सेप्ट. एलियर पॉपी था, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस करके, ज़्यादातर NGOs were promoting the FPOs, where there was a feeling that they lacked commercial orientation. इसलिए अभी CBPO कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कमर्शियल ओरिएंटेड एंटिटीज़ को भी इसमें शामिल किया है. So right from the beginning, because now the lending institution like us, within 6 months हम लोग क्रेडिट लिंकेज करने के लिए रेडी है. सो विदिन 6 months हम लोग क्रेडिट दे सकते हैं, तो FPO भी तैयार होना चाहिए. कमर्शियल ओरिएंटेशन इनिशियल स्टेज से भी दे शुड बी रेडी एंड दे शुड बी हैविंग अ कमर्शियल ओरिएंटेशन, देन ओनली दे विल बी इन अ पोजीशन टू utilize the credit in a proper way. Focus on governance, as I said, very very important है, because गवर्नेंस में कुछ ये हो गया तो एंटायर FPO इकोसिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है. देन लेंडर्स कॉन्फिडेंस विल गोज डाउन. एंड फोकस ऑन मार्केट लिंकेजेस, जैसा कल ने बताया होगा, देयर सेशंस. सो मार्केट लिंकेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, and for our lenders to get a comfort, first thing they say is where they are going to sell their produce, whether there is already an assured linkage is there. Even if you are not locking the price also, at least there should be some tie-up, and you should know there is a visible market available to for selling your produce. Sabse another important thing I would like to bring to the notice, don't get trapped into capital intensive infrastructure, because अभी हम लोग ऐसे ही mentioned we are working in 21 states. different states में different subsidy schemes है, state governments का, central government schemes है, state government schemes है, but सब्सिडी है करके don't go into get into building huge infrastructure that will create lot of issues. फर्स्ट आपका, जैसा आपने हमारा DMD साहब ने बताया, यू शुड बी वेरी फोकस्ड कौन सा कमोडिटी में डील करना है, व्हाट इज़ योर कैपेसिटी, कितना तक जा सकते हैं, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है, वही आप क्रिएट करना है. इफ़ यू रिक्वायर ओनली अ गोडाउन एंड अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, you restrict yourself to only that. Don't get into any infrastructure which is not at all required. High volume cold storages, godowns with a huge capacity godowns. This will all lock your working capital. आपका जो सब्सिडी का अमाउंट में भी 60%, मैक्सिमम 60-70% तक भी सब्सिडी मिल रहा है, बट एटलीस्ट रिमेनिंग 40 either you have to through your own contribution or you have to bring it through a bank loan. So banks भी एलिजिबिलिटी देखता है, जैसा बताया था ना, 5 times net worth, 2 times. When we calculate the eligibility, आपका एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी हो उसको माइनस कर देते हैं. आप ऑलरेडी आपके पास 20 लाख का लोन है, तो आपका एलिजिबल अमाउंट से वो 20 लाख माइनस करके बाकी अमाउंट को लोन पे कंसिडर कर सकते हैं. सो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन सी है, तो आपका वर्किंग कैपिटल का एलिजिबिलिटी भी नहीं बनता है. सो इट बिकम्स इनफेक्टस. आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बट यू वोंट बी एबल टू यूज इट, बिकॉज आपका वर्किंग कैपिटल देने का banks won't be willing to give, because you have already exhausted your existing limit for availing credit. So you have to be very very careful. धीरे धीरे जाइए, मे बी आफ्टर 5-6 years आपका क्षमता बढ़ेगा,
then you go for a bigger infrastructure, that too need based. Capacity underutilized नहीं होना चाहिए. So with this I close my presentation. The presentation is only a smaller part, but I would like to have a free-flowing discussion because wherever we go, more than the session, the question answer session extends a lot because we'll be having a lot of grievances and issues also to sort out. So anything related to financing FPOs.